और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अब शांति की याद आई है। एक विदेशी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान 3 जंग लड़ चुका है और पाकिस्तान अपना सबक भी सीख चुका है। इन जंगों ने गरीबी, बेरोजगारी और अभाव के सिवा कुछ नहीं दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है ताकि महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाया जा सके। Let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي. هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. I think as any citizen would say, I think this is a time of great pride in our diplomacy. I think we have achieved what has been the endeavor of our leadership, that is that those who are involved and who are complicit in acts of terrorism should be brought to book, and that we should use our diplomatic outreach through the United Nations, through our bilateral channels, to make sure that all of these terrorists are made accountable for their actions, and that in many senses international community should take steps that would make it clear that there is absolutely no tolerance, there is zero tolerance for terrorism anywhere. And Government of India's initiatives, whether it is no money for terrorism conference, whether it is bringing the counter-terrorism committee of the UN Security Council to India for the first time, whether it is a commemoration of the 26/11 terrorist attacks in Mumbai, I think we have been very firm, or the Financial Action Task Force, very firm in our actions in going after the perpetrators of terrorism. There is no safe haven for them, and they will not find any space to undertake these activities. We are working with the international community to ensure that that happens. So it's a tough stance, and it is bearing fruit. And that's very good news for all of us. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भारत से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर किए जाने पर बीजेपी का कहना है कि भारत ने नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से शांति बहाल करने की तरफदार रही है। वहीं बीजेपी ने पाकिस्तान की मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान की आतंक समर्थन नीति को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान लगातार मुंह खा रहा है और लगातार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ दुनिया भर मान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री, और आज कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको मदद जो है, फाइनेंशियल मदद मिल सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से बात करने के लिए तैयार हैं और अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। ये क्या ऐसे आज की डेट में पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं कि वो अब चाहता है कि जहां पर लगातार वो बात करता आ रहा था कि इंडिया को कहीं ना कहीं वो दुनिया भर में ब्लेम कर रहा था, आज वो इंडिया से बातचीत करना चाहता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता आर एस पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज पाकिस्तान जहां लगातार दुनिया भर से भीख मांग रहा है, आज वो चाहता है कि इंडिया से बात कर सके। दुनिया भर से भीख मांग रहा है, और जो वीडियोस वायरल हुए हैं पाकिस्तान के, आपके ध्यान में रहे कि राशन के लिए अफरा तफरी, तो ये माहौल तो आज से 50 साल 100 वर्ष पहले भी भारतीय महाद्वीप में कहीं भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब आप नफ़रत लोगों को सिखाएंगे
जब आप दूसरों के आंतरिक मामलों में जिसे कहते हैं गड़बड़, एक आतंकवाद के पैड आपका मिशन ही कहीं और होगा, आपका विकास, शांति, प्यार का जो आपने पाठ कभी लोगों को पढ़ाया नहीं, तो फिर यही हाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ याद रहे कि 2014 में एक मजबूत सरकार बनने के बाद और एक मजबूत मायानाथ नेता नरेंद्र मोदी जी की कमांड लेने के बाद भारत अपने आप में एक ब्रांड है। अगर आप पाकिस्तान की जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार का अगर आप लेख देखें पिछले दिनों, मैं कल ही उसे देख रहा था, तो उसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि पहले तो भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, भारत ने यूक्रेन को के विषय में सपोर्ट किया है, लेकिन रशिया के साथ भी संबंध बना के रखे हैं। सबसे कामयाब अगर इवैक्यूएशन किसी ने वहां से की है तो भारत ने की है, और रशिया से भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे तेल परचेज किया है। हालांकि पाकिस्तान यूएस का नॉन नेटो अलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने क्वाड के माध्यम से यूएस के साथ भी संपर्क साधा है। और जिस तरीके से भारत ने अपना फूड मैनेजमेंट इस कोरोना काल में भुखमरी का जिसे कहते हैं एक और जो बीमारी बन सकती थी, इस फ्री राशन के साथ काउंटर किया है, जिस तरीके से भारत ने कोरोना मैनेजमेंट किया है, जिस तरीके से भारत ने चाइना के विरुद्ध जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक दोनों अप्रोच के साथ कूटनीति भी, लेकिन उसके साथ पूरा एक जिसे कहते हैं सिर्फ रक्षात्मक नहीं आक्रामक भी, तो दोनों ओर से एक मिश्रण बना के बात की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा है, पाकिस्तान अपने ही कटघरे में खड़ा है। एक स्टेबिलिटी और एक मजबूत सरकार और एक कोहेरेंट एक्शन के लिए पाकिस्तान अभी भी परेशानी में, ट्रबल में। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत का बढ़ते कद से और जिसे कहते हैं वो उसमें कॉर्नर में जाएगा, और भारत के लिए अगला जो चंद जो आने वाला वक्त होगा वो स्वर्णिम वक्त होगा, और भारत भी जिसे कहते हैं टू पीस टुवर्ड्स ऑल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के जिसे कहते हैं प्रिंसिपल पे भारत बात करता है, भारत उसमें बिलीव करता है, और आने वाले दिनों में भी उसी प्रिंसिपल मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चलेगा। एक तरफ से जिसे कहते हैं वार करेंगे, दूसरी तरफ से दोस्ती का हाथ वो चलेगा नहीं, तो पहले पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता भारत की ओर से कोई संशय जिसे कहते हैं या कोई ऐसी जिसे कहते हैं कोई एक कम नजरी या तंग नजरी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात है, लेकिन पहले पाकिस्तान को या आतंकवाद में कंट्रोल करना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू रजा जी, थैंक यू जी। तो साफ तौर पर आपने सुना कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और इसीलिए लगातार भारत का जो स्टैंड है पूरी तरह से क्लियर है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता रहेगा, पर लगातार दुनिया भर में बदनाम होने के बाद अब वो चाह रहा है कि इंडिया जो है वो उससे बात करे, बट कहीं ना कहीं पहले जो है उसे आतंकी फैक्ट्री जो वो चला रहा है उसे बंद करना होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तो शब्दों से नहीं बल्कि अमल भी करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हम उसके नेताओं पर भरोसा कर ही नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफा फिर से हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रखने की बात की है। यही संकेत देता है कि पाकिस्तान डेस्परेट है हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शेख बशीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता। बशीर साहब, कैसे देखते हैं डेस्परेशन को पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान से बातचीत तो करना चाहता है लेकिन आतंकवाद भी साथ साथ चल रहा है? देखिए, पहली चीज़ यह है कि 1947 से लेके जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक बहुत कुछ हो चुका है, और जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा सफ़र हैं इसमें। अगर वो समझते हैं कि ये 3 जंगें करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, तो हर एक जंग के बाद जब तक टेबल पे अक्रॉस द टेबल बातचीत नहीं होती तब तक वो मसला हल नहीं होता है। तो लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो अगर वो प्रैक्टिकली तैयार हैं तो उसमें हमारे जो जोमा हैं जो इसमें डील करते हैं वो देखें कि क्या पॉसिबल है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर कभी डेमोक्रेसी पनपी नहीं है, 47 से लेके आज तक वहाँ डेमोक्रेसी पनपी नहीं है। वहाँ जो कुछ लीडर कहते हैं, वहाँ का जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि शहबाज शरीफ जो है वो आज किस पोजीशन में है, क्या उसकी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। तो लिहाजा मैं इस बयान को तो इसके साथ साथ जो कि यूनाइटेड नेशन में भी जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी, उनको भी जो है उनको भी बैन किया गया है। उनके खिलाफ भी जो है एक तरह से एक मुहिम चलाई जाएगी कि उनको पकड़ा जाए, इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। पहली बात यह है कि हर एक चीज़ के अंदर डिप्लोमेसी है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक ही पाकिस्तान नहीं, और भी बहुत से जगह पे है।
ये रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है तो डिप्लोमेटिक कहीं तलकात कहीं काम कर सकते हैं ना। तो हम समझते हैं कि अगर वो वाकई सिंसियर हैं तो प्रैक्टिकली कुछ करें, इस तरह तो बातों से कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली कुछ करना होगा, आतंकवाद को बंद करना होगा यदि पाकिस्तान वाकई चाहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया है। पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से मंशा जताई है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आतंकवाद का खात्मा कितना लाजमी है? देखिए, ऐसे है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी की स्टेटमेंट आई है कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है, क्योंकि रिश्ते तो हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मल सी रहे, अमन रहे, शांति रहे। आतंकवाद मैंने बहुत दफ़ा कह चुके हैं, हमने पहले भी कहा है, वो एक नसूर है, उसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत सारा नुकसान हो चुका है और हमारे देश का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है उनकी तरफ से, अगर वो बातचीत करना। बातचीत कैसे मुमकिन हो सकती है? आपको लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हिंदुस्तान को बातचीत करनी चाहिए जब तक कि आतंकवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ और आए दिन हम इस तरह के जो आतंकवादी अटैक हैं वो देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि बातचीत तो भी आज भी चल रही थी, पहले अभी भी चल रही है। अब आप बॉर्डर पर डीजीएमओ लेवल पे बातचीत तो चल ही रही है ना, सीज फायर तभी है ना, तो डीजीएमओ लेवल पर सरकार की मर्जी से बात हो रही है ना, तो बातचीत तो चलती रहेगी। हम तो हमेशा से कहते हैं, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी, बोली से, कि बातचीत करके अगर शांति आती है तो परेशानी क्या है? अगर पहले आतंकवाद खत्म होना चाहिए भाई, आतंकवाद के खात्मे के लिए तो बातचीत है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरे और आपके बात करने से कोई मसला हल होने को, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जो पाकिस्तान के है, एक तरफ आतंकवाद, एक तरफ बातचीत की बात, तो ये कैसे चलेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वो बातचीत से ही होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। वो पहले भी नवाज शरीफ जी के बर्थडे पर उनके वहाँ गए थे, उससे पहले वाजपेयी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था, हालात थोड़े बदले थे। पाकिस्तान का भरोसा कर सकते हैं? देखिए, भरोसे का मुझे नहीं पता है कि ये सरकार का फैसला है, उन्होंने बातचीत करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि सरकार ने करनी है। मैं समझता हूँ अगर दो मुल्क आपस में बातचीत करने के लिए राजी हो रहे हैं तो जो हिंदुस्तान की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अच्छी बात है। तो अगर बातचीत की अगर पेशकश है पाकिस्तान की तरफ से तो बातचीत होनी चाहिए, ये कहना है पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।